अगर आप पटना में हैं और ये जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहाँ पर हुआ था, जो सिखों के 10वें गुरु थे, तो गुरुद्वारा हांडी साहब आपके लिए आना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत जगह पर ये गुरुद्वारा हांडी साहब है। और इसकी जानकारी आपको दे दें कि ये गुरुद्वारा 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह की याद में बनाया गया। लगभग 7 वर्ष पटना में व्यतीत कर श्री गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब जाते समय पहला पड़ाव उन्होंने दानापुर में किया और यहाँ पर एक वृद्ध माई यमुना देवी के छोटे से घर को पवित्र किया। उसी माई ने गुरु जी की कृपा से एक छोटी सी हांडी से पूरी संगत को खिचड़ी खिलाई और इसी कारण ये गुरुद्वारा हांडी साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाशोत्सव के बाद फरवरी माह में सालाना पर्व मनाया जाता है और बहुत ही यहाँ पर शांति है। शायद कम लोग आते हैं, कम लोग जानते भी हैं। पटना सिटी, पटना साहिब तो काफ़ी पॉपुलर प्रचलित है, मगर यहाँ पर मैंने देखा है कि बिल्कुल शांति है। आइए आपको लेकर चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं कि इस गुरुद्वारे की क्या खासियत है और कब से है ये गुरुद्वारा और यहाँ पर कब सबसे सही समय होता है और किस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं और इतिहास क्या है। बाला प्रीतम ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ, ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ, ਸ਼ਿਵਰਤ ਪੰਡਤ ਆਦਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, महाराज मैं तो आप बहुत गरीबण हाँ, मैं तो मिट्टी की हांडी खिचड़ी दिती हाँ, जे आप जी हुक्म करो तो मिट्टी की हांडी वाली खिचड़ी आप जी को लैके आइए, आप जी बरकतां पाओ। तब बाला प्रीतम साहब से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, ठीक है माता जी, वो मिट्टी की हांडी वाली खिचड़ी साढ़े कोल लैके आओ। हुक्म मन के माता जमुना देवी जी वो मिट्टी की हांडी वाली खिचड़ी बाला प्रीतम साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को लैके आए। महाराज ने रुमाले नाल ढक के गुरु नानक साहब जी के चरणों में अरदास बेनती करके कुछ सिंघां नूं कहा, जाओ मैं सारी संगत नूं खिचड़ी का लंगर छका दिओ। सारी संगत ने खिचड़ी का लंगर रज पुज के छक लिया, पर हांडी विचों खिचड़ी मुक्की रही। उस तरह भरे दी भरे वेले ये कौतक वेख के सारी संगत कहन लग गई, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। बाला प्रीतम साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लंगर छकण तो बाद रात इत्थे विश्राम किया। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਤਾ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ, ਲਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਮਾਤਾ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਵੀ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਫਤਿਹ ਬਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिस जमुना देवी के यहाँ उन्होंने खिचड़ी खाई थी, फ़िलहाल उन्हें कोई नहीं जानता है इस दानापुर में। और हम यहाँ इन गलियों में भटक रहे हैं कि जमुना माई का कोई भी डिसेंडेंट, कोई वंशज मिल जाए जिनके यहाँ, जिनसे हम बातचीत कर सकें और थोड़ा बहुत जान सकें कि उसके बाद उन्हें बुलाने में कितना समय लगा। और आसपास के लोग बिल्कुल नहीं जानते कि ये गुरुद्वारा किस लिए मशहूर है, लोग उन्हें भूल चुके हैं। जमनी माई जो है वो हमारी परदादी लगती थी, परदादी छरदादी। तो वो यहाँ पर साधारण मकान बनाई हुई थी और उसी में रहती थी। तो गुरु गोविंद सिंह इधर से जा रहे थे, तो वो जो है ठहर गए, शाम हो गए, ठहर गए। तो वो जो है खिचड़ी बनाई हुई थी, तो कही इसकी माँ क्या बनाई हो, और संगत 3-4 गो और लोग थे। तो बोला कि खिचड़ी हम बनाए हुए तो खा चुके हैं, तो थोड़ा सा है बचा हुआ, तो वही जो है तो थोड़ा सा लोग को बाँट पड़सा और वही लोग खा के रह गए। और उसके बाद जो है से जमनी माई अपना हांडी को धो के अपना रख दी, और वो लोग सुबह में फिर पंजाब की ओर, यही गंगा के सोत पकड़े हुए पंजाब की ओर चले गए। और वो यहाँ पर राम भजन अपना ईश्वर का, चूँकि गंगा का धारा था इसलिए वो बैठ के अपना राम भजन करती थी। और उसका कुछ दिन के बाद देहांत हो गया। तो हमारे उसके वालिद जो थे, उनका जो लड़का थे, वो देखभाल करने लगी, और देखभाल करते करते वो भी गुजर गई। लेकिन हमारे परिवार के एक सदस्य हमेशा जो है से ये गुरु ग्रंथ साहब का जो है से सेवा करते रहा। और गुरु ग्रंथ साहब और ये भले ये वो बूढ़ी को, जमनी माई को गुरु गोविंद सिंह अपना चरण पादुका का चिन्ह दे के गए। और कुछ और भी सामान था जो इधर उधर हो गया। लेकिन उसके बाद जो है वो वहीं पर अपना, उसके बाद उनका लड़का जो है इस परिवार का एक सदस्य हमेशा से देखते आया और इस गुरु ग्रंथ साहब का सेवा करते आया। और हमारे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे वो, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज़्यादा गुरु नानक देव का नाम आता है, फर्स्ट गुरु। उसी तरह से हमारे भी परिवार में एक दादा थे जिनका नाम था गोपाल राम। तो गोपाल राम उस गुरु ग्रंथ साहब को जब तक जिंदा रहे, जब तक सेवा करते रहे, देखते रहे। और एक छोटा सा मकान था, उसी में उसको रखे हुए थे। लेकिन वो जो मकान भी कुछ फट गया, तो वो जो है से एक सरदार को दिखलाए, अपने भी वो भी मर गए। गुरु गोविंद सिंह के भाई गुरु ग्रंथ साहब को जो है अपने भाई को सुपुर्द किया, जिसका नाम था बेनी माधव। वो हाल फिलहाल की बात है, जो बेनी माधव सिंह सारा जीवन उसका देखभाल किए, गुरु ग्रंथ साहब का अरदास पूजा करते आए। उसके बाद गुरु बेनी माधव सिंह ही जो है
वो किसी BRC जो था उसमें सरदार को दिखाए और वो कहा कि आप बाबा इसमें रखे हुए हैं गुरु ग्रंथ साहब को, आपको हम गुरुद्वारा बना देंगे तो आपको कोई हर्जा है? कहा नहीं, आप तो जमीन दो, हम बना देंगे। अच्छा, यानी ये जो ज़मीन है वो भी जमुना माई का ही? हाँ, जमुना माई का है। ओह अच्छा। वो जमीन जो है से जमुनी माई का ही है। अच्छा। और हम लोग दान में दे दिया। तो ये बना कब है गुरुद्वारा, कितना साल ये पहले? इधर बना है, करीब हम लोग उस समय बच्चा थे। अच्छा, बच्चा आपकी कितनी उम्र है और आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रहलाद प्रसाद है और हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं ABS कॉलेज से। और उसके बाद हमारा एज जो है 7/1/1950 है, लेकिन है ज़्यादा उम्र। हाँ, पहले लोग कुछ छिपा के बाद से आसपास जब हमारा तो लोगों को बहुत याद नहीं था जमुना माई के बारे में। बिल्कुल नहीं। तो आपको बता रहे हैं कि हमको याद इसलिए है, बहुत अफसोस हुआ हमको सुन के। तो आपको बता रहे हैं कि हमको याद इसलिए है कि हम दादाजी के जो बेनी माधव सिंह थे उनके वो हमको बुला के प्रसाद जरूर देते थे, चूँकि हम बड़ा उनका सेवा करते थे। कोई बात में हम दौड़ के चल जाते थे। एकदम उस समय हमारा बहुत टेंडर था, करीब हम समझते हैं कि 8-10 वर्ष से कम के ही हो। तो यानी ये गुरुद्वारा अभी 100 साल पुराना भी नहीं है? 70-80 साल पुराना तो है ही है, लेकिन अभी ये जो बना है ना थोड़ा जो सुंदर हो गया हाल में बना है। अच्छा, सौंदर्य पहले छोटा सा रहा। पहले छोटा था। अच्छा, वो भी गरीब बना था, पहले छोटा था, लेकिन अब जो बना ना तो बहुत बड़ा विशाल बन गया। और इसमें जो है से पंजाब के कोई महंत है, वही जो है से कहा कि नहीं गुरुद्वारा बनेगा, बेजोड़ बनेगा, ढंग का बनेगा, लोग यहाँ कुछ आएंगे, देखेंगे, समझेंगे और इस गुरुद्वारा को हम चमकाएंगे। वही चमकाया। लगता है 10 वर्ष भी नहीं हुआ। गुरुद्वारा पहले से दूसरा रूप में आ गया, इस रूप में आ गया। तो आप भी अपने घर में रखते हैं गुरु ग्रंथ साहब अभी भी थोड़ा बहुत? नहीं, हम गुरु ग्रंथ साहब तो दे दिया हम लोग। अच्छा, पाठ वाठ करते हैं कभी? नहीं, हम नहीं करते। आप नहीं कर पाते? हम नहीं कर, हम गुरुमुखी नहीं जानते। हमारा बेनी माधव सिंह जानते थे, हमारे चचा जो थे श्री कृष्ण बाबू, वो गुरुमुखी जानते थे और वो लोग अरदास पूजा करते थे। अच्छा, बेहतर ही होता कि बेनी माधव जी उसको हिंदी में अनुवाद कर पाते? नहीं, हिंदी में अनुवाद कहाँ ना करेंगे। हिंदी आपके लोग ज्यादा पढ़ पाते मेरे ख्याल से? नहीं पढ़ते थे। और एक चीज़ आप बता रहे हैं, हम लोग बिलोंग करते थे खेती से, और खेती से बिलोंग करने के कारण जो है खेती हर का अब कुछ जीवन स्तर है। गुरुद्वारा हांडी साहब दानापुर से बुरा भला के लिए मैं निखिल आनंद गिरी। अगर ये वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।